Hello everyone. Welcome to Drishti Judiciary's latest initiative, the Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge, and previous year questions. Let's begin today's session. The first question is, under which article can the Supreme Court transfer cases from one high court to another? Article 141, Article 139, Article 142 और Article 139A. किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में मामलों को स्थानांतरित कर सकता है? अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 139, अनुच्छेद 142 या अनुच्छेद 139A? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, आर्टिकल 139A. इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 139A. Article 139A was added to the Indian Constitution by the 42nd Constitutional Amendment Act in 1976. Under Article 139A, the Supreme Court can transfer cases from one high court to another. This amendment was introduced to tackle delays and the undue hardships litigants experience due to the backlog of cases in certain high courts. अनुच्छेद 139A को 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था. अनुच्छेद 139A के तहत सर्वोच्च न्यायालय एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में मामलों को स्थानांतरित कर सकता है. यह संशोधन कुछ उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों के कारण होने वाली देरी और वादियों को होने वाली अनुचित कठिनाइयों से निपटने के लिए पेश किया गया था. Next question is, which article provides for the original jurisdiction of high courts in India? Article 214, Article 215, Article 225 और Article 226. कौन सा अनुच्छेद भारत में उच्च न्यायालयों के मूल अधिकार क्षेत्र का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 225 या अनुच्छेद 226? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 225. इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 225. Article 225 of the Constitution of India outlines the jurisdiction of high courts. This article grants the High Court the authority to formulate rules about proceedings and other related matters within its jurisdiction. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 225 उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को रेखांकित करता है. यह अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र में कार्यवाहियों और अन्य संबंधित मामलों के बारे में नियम बनाने का अधिकार देता है. Next question is, according to Section 118 of the Indian Evidence Act, who determines the competency of a witness? The court, the witnesses themselves, the lawyers, or the police? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के अनुसार गवाह की योग्यता का निर्धारण कौन करता है? कोर्ट, स्वयं गवाह, वकील या पुलिस? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, द कोर्ट. इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोर्ट. Recently, in the case of Ganesh Balai versus the state of Madhya Pradesh, the Madhya Pradesh High Court ruled that a young child may be permitted to testify if they possess the intellectual capacity to comprehend questions and provide rational answers. According to Section 118 of the Indian Evidence Act, every individual is deemed competent to be a witness unless the court finds them incapable. हाल ही में गणेश बलाई बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यदि किसी छोटे बच्चे में प्रश्नों को समझने और तर्कसंगत उत्तर देने की बौद्धिक क्षमता है तो उसे गवाही देने की अनुमति दी जा सकती है. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को गवाह बनने के लिए सक्षम माना जाता है जब तक कि न्यायालय उसे अयोग्य ना पाए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर हाउ मेनी वीक्स इज मैटरनिटी लीव प्रोवाइडेड टू अ वुमन अडॉप्टिंग अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 3 months? 6 weeks, 12 weeks, 15 weeks और 18 weeks? 3 महीने से कम आयु के बच्चे को गोद लेने वाली महिला को कितने सप्ताह का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाता है? 6 सप्ताह, 12 सप्ताह, 15 सप्ताह या 18 सप्ताह? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 12 weeks. इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 12 सप्ताह. Recently, in the case of Chairman's College of Dental Sciences and Research versus Reshma Vinod and others, the Kerala High Court ruled that the applicability of the Maternity Benefit Act also includes private educational institutions. The maternity leave for women adopting children under the age of 3 months as well as for commissioning mothers is 12 weeks. हाल ही में चेयरमैन कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज और रिसर्च बनाम रेशमा विनोद एवं अन्य मामले में केरल उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि मातृत्व लाभ अधिनियम के अंतर्गत निजी शिक्षण संस्थान भी शामिल हैं. 3 माह से कम आयु के बच्चों को गोद लेने वाली महिलाओं तथा कमीशनिंग माताओं के लिए मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह का है. द लास्ट क्वेश्चन इज, when the existence of the state of mind or the body or bodily feeling is the issue, which of the following facts are relevant? Intention and knowledge, negligence and rashness, ill will or good will, or all of the above? जब मन की स्थिति या शरीर या शारीरिक भावना का अस्तित्व मुद्दा हो तो निम्नलिखित में से कौन से तथ्य प्रासंगिक हैं? इरादा और ज्ञान, लापरवाही और उतावलापन,
दुर्भावना या सद्भावना, या उपरोक्त सभी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। All these elements are essential to consider gaining an understanding of a person's state of mind, body, or bodily feelings in legal context. Section 14 of the Indian Evidence Act of 1872 deals with the facts showing the existence of state of mind, body, or bodily feeling. कानूनी संदर्भों में किसी व्यक्ति की मनस्थिति, शरीर या शारीरिक भावनाओं को समझने के लिए ये सभी तत्व आवश्यक हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 14 मन, शरीर या शारीरिक भावना की स्थिति के अस्तित्व को दर्शाने वाले तथ्यों से संबंधित है। Before we wrap up, here's a question for you. What are the considerations for deciding an application under Order 7, Rule 11? Written statement only, replication, plaint with documents of the plaintiff, or written statement with documents of the defendant? आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत आवेदन पर निर्णय लेने के लिए क्या विचारणीय बातें हैं? केवल लिखित बयान, प्रतिकृति, वादी के दस्तावेजों सहित वाद पत्र, या प्रतिवादी के दस्तावेजों के साथ लिखित बयान? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।